and we go to the miracles of your mind now. इसमें भी this chapter is just a continuation of what we studied in the first book, right? ये भी total money और wealth के बारे में है. Let's read this first and then we'll analyze it. कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी? आपके पास अगर आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट का काम करते हो और आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में ये लिखा हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स दैट आई मेक 5 लाख रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. दैट इज रॉन्ग. You should not write that. You should not specify that from which particular source you are getting that amount. राइट? यू हैव टू बी अबंडेंट. अब स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया. मैम ने एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो टेलीसाइकिक्स बुक थी उसमें भी ये एग्जाम्पल था, और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी एग्जाम्पल दे रखा था. स्टॉक ब्रोकर था, मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई लेकिन वो उसका जो वेल्थ इंक्रीज होता गया. जैसे मैम ने कहा कोविड के टाइम पे, मैम ने कहा कोविड एकदम हाइप पे था एंड मैम का जो अकाउंट है इट वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. हाउ? बिकॉज शी डिड नॉट स्पेसिफाई दैट आई वांट द मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स. Right? Universe is giving you the money, be it the stock market, be it your educational institution, be it your YouTube thing, be it your any other thing. Universe is giving to you. Every person is a replica of universe in front of you and he will give to you. You do not have to direct the universe that universe I want from that source. No. You just invite wealth, you just invite opportunities. And you invite abundance, but you do not have to specify from where you want the money from. बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हमने पढ़ी थी ये. अभी हम उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने आगे पढ़ते हैं और सोनिया बत्रा फ्रॉम दिल्ली हमारे लिए आज पढ़ेंगी. हाँ जी सोनिया पढ़िए. यहाँ से पढ़ना है हमने. व्हेन यू आर सीकिंग टू कन्वे द आइडिया. Yeah, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सोनिया. When you are seeking, yeah, when you are seeking to convey the idea of wealth and success to your subconscious mind, be sure you never make foolish statements such as, I despise money. It is an evil thing. It is the root of all evil. Such an attitude of mind will cause money to take wings and fly away from you. You would then be giving two conflicting orders to the subconscious mind. One would neutralize the other and nothing would happen. Money has taken many forms down through the ages. What you really want is to have a subconscious conviction that money will always be in constant circulation in your life, meeting all of your needs at every moment of time and every point of space. जस्ट मोमेंट सोनिया. ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्मेशन हो सकता है. मनी इज ऑलवेज इन कांस्टेंट सर्कुलेशन इन माय लाइफ व्हिच मीट्स ऑल माय नीड्स एट एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम ऑफ स्पेस. दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल एफर्मेशन. इसलिए you there is no need to look for affirmations elsewhere. Whatever book we are reading, we can derive our affirmations from there only. You can pick it up like this, है ना? जिस तरह से हमने वो पिक किया था कि my life is so affluent, हमने वो भी पिक किया था. इस तरह से इसमें से अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना चैप्टर को, हमें इसमें से ही एफर्मेशन आ जाए. कितना सुंदर है ये कि मनी इज ऑलवेज इन कांस्टेंट सर्कुलेशन इन माय लाइफ एंड आई एम मीटिंग ऑल माय नीड्स एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस. Or else you can just take the half of it. Money is always the constant circulation in my life, right? So this can be done. हाँ, तो हम आगे पढ़ते हैं. हाँ जी. Money is essential for your economic health in this country. Therefore, you should have all you need and a surplus. Begin now to believe and claim that money is wonderful. Begin to love money and be friendly with it. You will always have plenty. You will never want. Love is an emotional attachment. Except you love your work or profession, you cannot be a true success. Love always magnifies and multiplies. Love the idea of wealth until it becomes embodied subjectively. Write this down in big letters in your mind. What you love, you increase. What you criticize fades out of your life. You are familiar with the fundamental fact. When money is circulated freely in a country, its financial condition is healthy. Let there be a healthy circulation of money in your life also, particularly in your mental attitude. Believe that money is good. Think of all of the good you can do with it. Become a mental inlet and outlet
For a constant stream of wealth forever flowing to you and forever flowing from you in a perfect circulation. If you are having financial difficulties trying to make ends meet, it means you have not convinced your subconscious mind that you will always have plenty and some to spare. You know, men and women who work a few hours a week and make fabulous sums of money, they do not strive or slave hard. Do not believe the story that the only way you can become wealthy or successful is by the sweat of your brow and hard labor. It is not so. The effortless way of life is the best. Do the thing you love to do and do it for the joy and thrill of it. Sing at your work, you will if you love it. Also, if you love your work, you are bound to be a success. जस्ट अ And I, मोमेंट सोनिया, इतना yeah. हम इतना करते हैं, इतना एनालाइज कर लेते हैं पहले. सो हियर डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेज कि हम लोगों ने कैसे अपने वेल्थ माइंडसेट को हम लोगों ने डेवलप करना है, जो हमने पहली किताब में भी पढ़ी है. और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो बुक है, जो वॉल स्ट्रीट वॉटर्स की बुक है, 1910 में लिखी गई थी वो. और रोंडा वन ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस बुक को रेफर किया और उसको उन्होंने अपने बॉडी में, अपने लाइफ में एम्बॉडी किया, उसको एब्जॉर्ब किया अपने फाइनेंशियल वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, राइट, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए. वॉल स्ट्रीट वॉटर्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसमें ये बोला गया था कि आप जो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर यू आर, वॉट एवर यू आर राइट नाउ, यू कैन बिकम रिच. रिच आप सभी बन सकते हो, हम सभी में वो कैपेबिलिटी है. बिल्कुल डेमोक्रेटिक वर्ड है ये, कोई भी रिच बन सकता है. उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हेरिडिटी होनी चाहिए या आपके पास पुश्तैनी पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. पुश्तैनी पैसा हमारी ओपरा विंफ्री के पास नहीं था. पुश्तैनी पैसा, इस तरह का बिलियनर्स वाला पैसा हमारे जो वॉरेन बफेट है उनके पास नहीं था. हमारे पुश्तैनी पैसा जो है वो हमारे मुकेश अंबानी जी, जो धीरूभाई अंबानी उनके फादर हैं, धीरूभाई अंबानी के फादर के पास नहीं था. वो कहां से बने वो सब? क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया था. अगर आप एलन मस्क की बात पूछोगे, एलन मस्क से एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उससे पूछा कि व्हाट थिंग्स यू आर सच वर्कहोलिक, आप इतना अच्छा काम करते हो, इतना सारा काम करते हो, आप स्पेस तक पहुंच गए, है ना, आपके पास इतना वेल्थ है कि आप स्पेस तक पहुंच गए. व्हाट इज दैट थिंग दैट ड्राइव्स यू? आपको मोटिवेट क्या करता है? तो उसने ना इस बात का जवाब नहीं दिया. ही जस्ट कंटिन्यूड विद द इंटरव्यू. देन द इंटरव्यूअर, उसने फिर से स्टॉप किया कि मिस्टर मिस्टर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? कह रहा है इस क्वेश्चन का आपका जो सवाल जो है ना वो मुझे बेसलेस लगा, बिल्कुल मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए. क्या मोटिवेट करता है, मतलब क्या है? क्या मेरे को अपनी जिंदगी को जब रिच बनाना है, मुझे जब अपनी जिंदगी को अबंडेंट बनाना है, तो मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मेरा अपना ही तो काम है वो. मुझे अपनी लाइफ अच्छी चाहिए तो व्हाई, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग विल मोटिवेट मी? आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट. दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन. यू आर योर बिगेस्ट मोटिवेटर. आप अपने मोटिवेटर होते हो. मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, दीप्ति मैम नहीं मोटिवेट कर सकती, कोई नहीं कर सकता अनलेस यू आर सेल्फ मोटिवेटेड. व्हाई? बिकॉज आपको कहीं और से अगर मोटिवेशन चाहिए अपना काम करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है. आपको अगर अपनी लाइफ सुधारनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, अपना वेल्थ इंक्रीज करना है, यू हैव टू हैव द डिजायर कि हाँ मुझे करना है. क्यों करना है? ऑलवेज मेक योर वाई स्ट्रांग. अपना वाई स्ट्रांग रखो. क्यों चाहिए मुझे दुनिया भर की वेल्थ? चाहिए मुझे, क्यों चाहिए वेल्थ? क्यों चाहिए वेल्थ? आपके पास आएगा तो यू विल बी, जैसे अभी डॉक्टर मर्फी ने बताया कि यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट? यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. एंड आपको पता है ना कि कितना ज्यादा पैसा जो है हमारे कंट्री का या कहीं का भी, किसी भी कंट्री का, डिफेंस में चला जाता है, वॉर्स में चला जाता है. तो क्या है, हम लोग उनको पैसा क्यों चाहिए? सो दैट हम लोग रिसर्चेस कर सकें, है ना, हम लोग पृथ्वी से भी आगे बाहर बाहर यूनिवर्स में बाहर जाने की कोशिश कर सकें. जो भी स्पेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि जो एलन मस्क का भी एक स्पेस का प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है. अगर हमको ये चाहिए, जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि हर एक पर्सन जो है वो लिटरेट होना चाहिए, सो दैट उसको अपने राइट्स का पता हो, सो दैट उसको अपने ड्यूटीज का पता हो. वो कैसे आएगा? जब सबके पास इनफ खाना जाएगा पेट में. वो कैसे जाएगा? आप जब
आप जब बाय करोगे चीज को, जब आपकी वृद्धि होगी, जब आपका फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, आप हर तरीके से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी कंट्री का जो है इकोनॉमी वो बढ़ेगा, साथ ही साथ पूरे नेशन का, पूरे वर्ल्ड का बढ़ेगा, क्योंकि आप आगे जाने की बात करोगे, आप फ्यूचर की बात करोगे हमेशा। तो जो वॉर्स में या डिस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा चाहता है उसमें भी तो लग ही रहा है ना। तो इसीलिए जब आप एक सामान भी बाजार से खरीदते हो, आप मान लीजिए एक सिंपल सा बिस्किट का पैकेट भी अगर आपने खरीदा है, तो उस बिस्किट के पैकेट में आपने देखा वो जिस भी कंपनी का था उसका एक ब्रांड एम्बेसडर होगा, है ना। उस ब्रांड एम्बेसडर को वो पैसा गया है। आपके अगर बिस्किट का पैकेट सिंपल, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का भी अगर बिस्किट का पैकेट आया है, तो उसमें कंपनी की कॉस्ट होती है, फिर ब्रांड वैल्यू होती है जितना वो ब्रांड एम्बेसडर को पे करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा होता है। तो वो इवन दैट 10 रुपीज बिस्किट पैकेट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। देन जस्ट थिंक व्हेन यू विल बी बाइंग थिंग्स वर्थ 10,000, 10 lakh और millions, then how much you will be contributing to the economy of the country as well as to the world. Always have that broader perspective of mind that will give you the abundance mindset. हमेशा एक चीज सोचो, ये मत सोचो कि हाय मेरा इतना खर्चा हो गया, ये सोचो कि वाओ मेरे इस पैसे से एक भूखे बंदे की प्लेट में आज खाना चला गया, या किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ लेगा, किसी गरीब की लड़की आज पढ़ लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैंने स्कूल की फीस पे करी है ना, मैंने अपने बच्चे की स्कूल की फी पे करी है। तो स्कूल वाला क्या करेगा, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो टैक्स पे करता है। वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। उस पैसे से सरकार क्या कर रही है, जो मुफ्त में जो एजुकेशन दे रही है, जो साक्षरता, नेशनल साक्षरता मिशन है, उसके लिए वो पैसा जा रहा है। उसके अलावा आप हिल्स में जाते हो, आप कहीं हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हो, वहां पर सड़कें जो बनी हुई हैं, हम लोग सड़कों को एंजॉय करते करते जाते हैं। वो सड़कें कौन बना रहा है? हम और आप तो जाकर बना नहीं रहे ना सड़कों को, आप जो टैक्स का पैसा दे रहे हो उसी से सरकार बना रही है ना उनको। तो ऑलवेज डू नॉट बिग्रांज कि इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ा है। एक तरफ अगर आप ये सोचो कि मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे जब चला जाता है या ऑनसेट ऑफ डे के साथ हम लोग ये ग्राजिंग वाले स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि इतना टैक्स देना पड़ता है, इतनी महंगाई हो गई है। अगर महंगाई हो रही है तो गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स यू डीए, डेनस अलाउंस देता है ना। और गवर्नमेंट के साथ साथ जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी करते हैं अपनी तरफ से जी। हम लोगों को ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कैसे हम लोग अपना अबंडेंस का माइंडसेट करेंगे, और उन पैसों को छोटे मोटे जो हम लोगों को खर्चे करने पड़ रहे हैं उसको हम लोगों को ऐसे बहुत ही इस तरह मिजरी के साथ हम लोग उसको स्प्रेड ना करें। जितना हम लोग कर पा रहे हैं ना, मैम हमेशा बोलती है ना कि अपनी चादर बड़ी करो, जितनी चादर उसमें पैर पसारो उतना नहीं, हम लोगों ने अपनी चादर का साइज को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए सबसे पहला सबसे बड़ा काम है अपने माइंडसेट को इंक्रीज करना, अपना ऑरा को इंक्रीज करना। आप जस्ट एक सोचो कि आप यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो, और आपके साथ साथ ना सर्कल्स हैं, सर्कल्स ऑफ अबंडेंस। सबसे पहला सर्कल हमारा, जैसे अगर हम रौंडा बन के हिसाब से जाएं, पहला हमने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है ना, तो वो वाला जो पहला सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, पहला सर्कल आया हमारा रिश्तों का। उसके बाद हमने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया है ना, हेल्थ का सर्कल बना। फिर हमने मनी का सर्कल बनाया, वो मनी वाले सर्कल को ही हम लोग और भी स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू योर ऑरा। Your aura is increasing. You are inviting all the abundance in your life, and that will happen when you will be working on your mindset. Love करो, जैसे यहाँ पर डॉक्टर मर्फी ने बोला कि गिव द एनर्जी ऑफ लव। कभी ऐसा लग रहा है कि मनी आपको, अगर ऐसा कुछ बिग्राजिंग स्टेटमेंट आ जाता है, ऑलवेज हैव द स्टेटमेंट कि लव, I love money. I love to spend money. Money also loves to come to me, right? So ये love वाली energy डालो। I love to be contributing to the economy. I love my school. I love my organization. वो love वाली energy डालो money के लिए। जो भी चीजें आप money से buy कर सकते हो, कर पा रहे हो, love that thing. Money loves the energy of love also. Universe loves the energy of love. राइट तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी से बिल्कुल सैचुरेट कर दो अपने एंटायर फाइनेंसेस को, जो आपके पास आज है और जो आपके पास आज नहीं भी है। रिमेंबर ऑलवेज वॉट एवर कंडीशन यू वर देयर, लाइक जस्ट सपोज यू ज्वाइन, आई डोंट नॉट नो, लाइक मैजिक्स एंड मिरेकल्स जो को आपको ज्वाइन, हम लोग इसी को लेके चलते हैं बिकॉज दिस इज माई वर्ल्ड नाउ। जब हमने मैजिक्स एंड मिरेकल्स को ज्वाइन किया
तब हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है, आप जब उसको बिल्कुल चॉकआउट करने की कोशिश करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कैसे, क्योंकि वी वर्क ऑन द माइंडसेट, वी ऑलवेज वर्क ऑन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि माइंडसेट को अपना ठीक करो। मेरा खुद का माइंडसेट बहुत ठीक हुआ है, आई वॉज एन अबंडेंट पर्सन पहले भी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द सेशंस मैं बहुत ही आराम से देने लगी हूँ, एक्स्ट्रा देने लगी हूँ। पहले मैंने कभी भी मेड वगैरह की तनख्वाह कभी काटी नहीं थी मैंने, लेकिन अब जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट शुरू करा ना, जो मैम ने हमारा थर्ड पॉइंट बताया है, ऑलवेज पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट टू समझ, जो कैबी के वो एक्स्ट्रा दो, आप होटल में कहीं जा रहे हो तो आप टिप जेनरसली करो, कोशिश करो, आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो आप वहां पर टिप करने की कोशिश करो, तो क्या होगा उससे आपका माइंडसेट सुधरता है कि आई हैव दैट इज व्हाई आई एम गिविंग, राइट? सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अबंडेंस, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव टू मेक, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो यही हम लोगों ने भी पढ़ा कि वेल्थ और सक्सेस को हम लोगों ने इसको अपना मेंटल चार्टर बना लेना है, और वेल्थ और सक्सेस को, ये हमारा चैप्टर यही था ना, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। तो हम अपने सानिध्य, बब्बर जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, बस हमारा सेशन अभी खत्म ही होने वाला है, प्लीज अपने आप को थोड़ी देर और म्यूट रख ले। तो ये चीजें हैं, तो हम लोगों को अपने माइंडसेट पे काम करना है। डॉक्टर मर्फी ने हमें दे रखा है वेल्थ सक्सेस, उन्होंने ऐसे बोला है, अगर आपसे लंबा वाला सेंटेंस में अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड कि व्हेन यू आर सेइंग दैट आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, बट आपको पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है, तो उस पर आप मत करो, आप बस वेल्थ प्रोस्पेरिटी इस ये वाले जो है ना कीवर्ड्स पे फोकस करो। डू नॉट लाइक यू डू नॉट हैव टू से द होल सेंटेंस, यू जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रोबस्ट हेल्थ, हैप्पीनेस। जब आप रात को जब सो रहे हो, बल्कि डॉक्टर मर्फी ने तो कल बोला ही था ना हमें कि दिन में 3 बार आप ये वेल्थ और सक्सेस पे मेडिटेट करो। 5-5 मिनट के लिए आप दिन में 3 बार अपने लिए अपना समय निकाला, आपने टाइमर लगाया, डीप ब्रीथ किया। ब्रीदिंग इज मैनिफेस्टेटिव ऑलवेज, सी नेचर इज एक्चुअली मैनिफेस्टेटिव। ब्रीदिंग करो, नेचर में जाओ, पानी पियो, दैट इज मैनिफेस्टेटिव। अपना कोई भी एफर्मेशन का प्रैक्टिस करने से पहले डीप ब्रीदिंग करके पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर लो, सो दैट ईच एंड एवरी एफर्मेशन सीप्स इनटू इट एंड इट बिकम्स योर रियलिटी। वो करने के बाद वेल्थ सक्सेस ये आप बोलते रहो और उसको उसके ऊपर ध्यान दो। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, अगर आप उसको बांट नहीं रहे हो, आप उसको अपने पास ही रख रहे हो, तो वो गलत है। आपकी सैलरी में वृद्धि हुई है, आप अपने मेड की सैलरी को भी बढ़ा सकते हो ना, उसको दो, उसको बांटो। उसका अगर आपको लग रहा है मैं दुकान में जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, ये सामान अगर मुझे अगर महंगा लग रहा है, तो उसको कितना लगता होगा, उसको चाहे 100 रुपए का इंक्रीमेंट दे दो। तो सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज लाइक दैट, राइट? हमेशा ये करने की कोशिश करो कि हम अपने जो फाइनेंशियल जो अबंडेंस हमारे पास आ रही है, यूनिवर्स के पास हमें देने के लिए कई लाख गुना ज्यादा है। वी आर ऑल द चोजन वंस एंड यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस ऑल इन अबंडेंस। हमेशा स्पेंड करो इन ऑर्डर टू रिसीव मोर, है ना? हमेशा इस चीज को जब करोगे तो मनी आपके लाइफ में सर्कुलेशन करेगा और आता रहेगा, और आपके पास से जाएगा भी, और काफी गुना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आपके पास आएगा। बहुत ही क्यूट लगता था मैम के मुंह से ये वर्ड कि आप जब भी मनी को स्पेंड कर रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, तो मनी को खूब सारा ब्लेस करके दो कि वाओ मनी, आप जा रहे हो यहाँ पर, उनका फाइनेंशियल जहां पर भी मैं पे कर रही हूँ उस पर्सन का तो फाइनेंशियल अबंडेंस आए ही आए, फिर आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर मेरे पास आ जाना, राइट? तो इस तरीके से हम लोग जितना स्पेंड करते हैं उससे ज्यादा हम लोग रिसीव करते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने माइंडसेट पे काम करना है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोगों ने इन बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आए। हम लोग आज जहां भी हम लोग स्टैंड करते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, बल्कि हम आई शुड से एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट बी, डू एंड हैव। If you have dreamt for it, if it has come into your mind, then you can actualize it. You just have to have the frequency of the universe. To have the frequency of the universe, you have to align yourself to the frequency of the universe. अपने दिमाग में खाना तो हम लोग अच्छा खा ही रहे हैं, साथ में दिमाग में हम लोग अच्छी चीजें डालें, अच्छे थॉट्स डालें, अच्छे एफर्मेशंस डालें। मनी का अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि इतना मनी मेरे को चाहिए, उसमें आप ये सोचो कि मैं उस मनी जब मेरे पास आएगा, विजुअलाइज करो कि मेरे पास क्या, मतलब वेल्थ को विजुअलाइज करो। व्हाट इफ आई गेट दैट मच ऑफ मनी,
है ना, मैं बिलियनर बनना चाहती हूँ, आई एम अ बिलियनर, आई कीप ऑन एफर्मिंग दैट आई एम अ बिलियनर। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन कि व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन यू विल बिकम अ बिलियनर। आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल्स करके, हो सकता है आपने एक आइलैंड खरीद लिया, आप आइलैंड खरीद के आप वहां पर जा रहे हो, वहां की इकोनॉमी आपके कारण इंक्रीज हो रही है, आप इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ओनर्स होंगे ना, बिजनेस ओनर्स। हमेशा जब भी आपका कुछ प्रोडक्शन होता है, मेजर कोई चंक आता है ना, आप कोशिश करो, आप कोशिश करो कि आप लोगों को बांटो, अपने जो वर्कर्स हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि ऐसे ही मनी लव्स टू बी सर्कुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्कुलेटेड। ये तो ऐसा ट्रेजर है, जितना आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। जिस तरह से ज्ञान होता है ना, ज्ञान की वृद्धि ऐसे ही होती है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है, उसी तरह से वेल्थ एंड अबंडेंस भी है, जितना आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना आपके पास आएगा। सो आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इनॉर्मस वेल्थ। आप लोग सभी के सभी मनी मैग्नेट हो और बनते रहो, इसी तरीके से आप वेल्थ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहो, एंड वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू, यूनिवर्स हमारे साथ को क्रिएट कर रहा है, वी आर जस्ट नथिंग, हम लोगों को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करना है। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद मनी। ऑब्सेशन के हालात तक नहीं, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इनफैक्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट द रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं है कि हम लोग रैट रेस में खाली हम लोग मनी मनी ही करते जाएं, लेकिन अपने फैमिली को इग्नोर करें, या अपने इंजॉय ना करें उस मनी को। मनी लव्स टू बी एंजॉयड, राइट? अगर आप सारा दिन काम कर रहे हो एंड यू से दैट यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, देन वर्क while you work. You do not have to work while in your family time. You have to maintain a wonderful work-life balance also. So वो वाला money है, money is like a lot of things, but it is not everything. Do not make money भगवान। जैसे मैं हमने कहा था ना, money हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है, राइट? इसके साथ साथ वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दो, अपने परिवार वालों के लिए समय निकालो, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, वो बहुत जरूरी है, राइट? तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक you for listening to me, thank you for coming into the session daily, and thank you to the wonderful readers, Sonia ji and Mona, you read absolutely wonderfully, and thank you to my wonderful team, Poonam ma'am को थैंक यू बहुत सारा, अनु को थैंक यू, भारती को, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट फ्रॉम प्रियंका's शेयरिंग ऑफ द लिंक ऑफ द ग्रुप मीटिंग का, तब से लेकर एकदम एंड तक जब उन्नति रिमाइंडर्स डालती है, उन सभी एडमिन का मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल सेल्फलेसली काम कर रहे हैं फॉर द फॉर द पीपल we are serving. You are, each and every one of you are contributing, each and everyone is contributing to make this world a beautiful place. So thank you so much everyone. It's not that every day I acknowledge that, but it is must. It's always that we are learning from each and every one of you, each and every one of you who was joining the session also. So thank you so much, thank you for spreading the love. Thank you, Priya.